To open up Power BI desktop into your system, the prerequisite for that is to install Power BI desktop. So if you haven't installed Power BI desktop into your system, just go back to my previous video and get it installed. Now, to open it, you have to go to your search taskbar, click on this search icon here, and type Power BI desktop and press enter or click on this option. So if you open it, the Power BI desktop will get opened into your system. So this is the icon of Power BI desktop. If you see this yellow bars, now this is the layout you will see once you open your Power BI desktop. Now, as we all know that Power BI desktop or the Power BI is a data visualization tool or data insights tool. So you must have your data connected with it. To connect your data, you will have some options into it. Now, if you have your own data to connect, you can go with blank report, or you just want to start with the sample data to for the learning purpose, you can start with learn with sample data. So if I click on this learn with sample data, the Power BI will itself show a pop-up here, and there are two ways to use sample data. You can go to that tutorials, or you can just directly load the sample data. So you can load the sample data directly. It will connect the default sample data set with it. So you once it's get loaded, you will see this navigator here, and you will have two table options here. As this is loading financial sample dot xlsx. So this is the excel file, and in that excel file we have two sheets or two tables here. That is, first is financial and second one is sheet 1. So to preview the data, you can just click on this table name or the sheet name, and the data preview will be shown to you. As you see this message here, the data in preview has been truncated due to size limits. As we have this data, as we say, the preview only, then it will be only the truncated data with few of the records, first records. You can scroll towards right or left to see what kind of data it is showing you. Okay, and you can go to the second sheet as well to preview the data. So I am just going to load the first one, financials. To If you see here, there are two buttons, load and transform data. So these are currently disabled because we are just checking the preview here. To load it, if you see here, we have two checkboxes for different two tables. So just click on the checkbox here for the table you want to load it into Power BI desktop. So I have checked it with financials, and if you see, we have now these two buttons enabled. To load this data, just click on this load button. So it will set up the connection between the excel sheet and get it load. Once it's get loaded, it you will see under this data tab here, or the data pane here, with the table name here. So if you hover your mouse over this table name, you will see name of the table, storage mode, and date refreshed. So we will discuss all this tooltip or the information you are seeing on hovering later on. If you see here, this is an arrow here. So this is the arrow to collapse or expand this table. If you click over here, you will see what all fields you have, what all the columns you have under this table. Okay, so this is the financials table you have loaded into a Power BI desktop. This is just a sample table that Microsoft Power BI desktop provides for the learning purpose. Okay, now for this tutorial we have to just analyze the Power BI desktop, how it works, and how the preview of it. So if you see on the very first left top, there is a save button here. You can directly save your report on clicking on this and set up the location. Then here, untitled Power BI desktop. So Power BI desktop, inside this Power BI desktop you will see the report name from which, using which you have saved it. So यहाँ पर जो भी आप पावर बी आई रिपोर्ट का यहाँ पे नाम, जिस नेम से भी आप सेव कर रहे हो, वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा. सो इट इज नॉट सेव्ड येट, सो इसलिए यहाँ पर हमें अनटाइटल्ड शो हो रहा है. नाउ उसके बाद हमारे पास ये एक मेन्यू पेन होता है, मेन्यू बार होता है. इनसाइड इट वी हैव दिस फाइल्स ऑप्शन. फाइल ऑप्शन, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं. सो दीज ऑप्शंस आर जनरल ऑप्शंस फॉर सेटिंग, गेटिंग डेटा, शेयरिंग रिपोर्ट, सेविंग and publishing report, export the data, sign in options and settings. There are multiple options over here.
टू गो बैक यू कैन क्लिक ऑन दिस ग्रीन बैक आइकन हियर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ टैब्स होते हैं, जैसे कि होम टैब। यहाँ पे आपके होम टैब में कुछ अलग ऑप्शंस होंगे, इंसर्ट टैब में कुछ अलग ऑप्शंस होंगे, मॉडलिंग टैब में कुछ अलग ऑप्शंस होंगे। सो बेसिकली दिस इज द मेन्यू बार। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ये ब्लैंक व्यू दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैनवस। ये फर्स्ट जो हमारा व्यू होता है वो रिपोर्ट व्यू होता है, एज यू सी हियर इट इज सिलेक्टेड। तो ये वाला जो व्यू होता है दैट इज आवर कैनवस। इस कैनवस के साइड में अंडर दिस रिपोर्ट व्यू ओनली वी हैव दिस फिल्टर्स पेन, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट कोलैप्स था। तो इस एरो की हेल्प से हम इसको कोलैप कर सकते हैं या फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये विजुअलाइजेशन पेन आता है। इस विजुअलाइजेशन पेन में हमारे पास मल्टीपल विजुअल्स होते हैं और द चार्ट्स होते हैं, जिनको हम अपने पावर बीआई रिपोर्ट में या फिर पावर बीआई फाइल में बनाना चाहते हैं। सो द व्हाट आई एम सेइंग रिपोर्ट इज, जो भी आप पावर बीआई से डेवलप करते हो, जो भी चार्ट्स बनाते हो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस आउटपुट इज रिपोर्ट। सो व्हाट जो कि हमारा, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो पाइथन फाइल होती है, जावा फाइल होती है, क्लास फाइल होती है। सो जो भी हम पावर बीआई में डेवलप करते हैं दैट इज आर कॉल्ड एज रिपोर्ट। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा विजुअलाइजेशन होते हैं कि हम कौन से चार्ट्स बनाना चाहते हैं, एंड उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड विजुअलाइजेशन का यहाँ पर फॉर्मेटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास कोई भी चार्ट नहीं है और कैनवस सिलेक्टेड है, तो दैट मीन्स ये हमें कैनवस की सेटिंग्स शो करेगा। नेक्स्ट थिंग इज आर डेटा पिन। सो वॉट एवर टेबल्स यू हैव कनेक्टेड विद योर पावर बीआई डेस्कटॉप, यहाँ पे वो सारे टेबल्स दिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ पावर बीआई हम इन टेबल्स को क्वेरीज बोलते हैं। So if you have one query, one table, then it will called as query, or if you have multiple tables, then it will called as queries. So यहाँ पर हमारे पास सिंगल टेबल है, दैट इज सिंगल क्वेरी है, एंड इस क्वेरी में हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं। कॉलम मीन्स इन टेक्निकल टर्म्स वी विल कॉल इट एज फील्ड्स। सो हमारे पास इतने सारे इस क्वेरी के अंदर, इस टेबल के अंदर इतने सारे फील्ड्स हैं, दैट इज इतने सारे कॉलम्स हैं। अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो व्यूज हैं, एक डेस्कटॉप लेआउट व्यू है और एक मोबाइल लेआउट व्यू है। जैसे कि हमने पावर बीआई के ओवरव्यू वाले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि हम मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं, आर मोबाइल फोन, एंड देन हम डेस्कटॉप व्यू भी देख सकते हैं यूजिंग आर डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप। तो हमारे पास ये दो आइकन्स होते हैं फॉर दोज डिफरेंट व्यूज। यहाँ पे हमारे पास पेज का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम पेज को रीनेम कर सकते हैं, वी विल लर्न हाउ टू रीनेम इट। एंड यहाँ पे प्लस आइकन से हम अपने पावर बीआई रिपोर्ट में मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं, जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। नेक्स्ट हमारा आता है जो व्यू आता है, वो आता है हमारा टेबल व्यू। क्लिकिंग ऑन दिस टेबल व्यू, लेफ्ट साइड में हमारे पास चार व्यूज होते हैं, तो हमने अभी देखा वो है रिपोर्ट व्यू। नेक्स्ट हम जाते हैं टेबल व्यू में। तो जो भी हमारी टेबल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो भी डेटा हमारे हमने इम्पोर्ट किया हुआ है, उस टेबल को सिलेक्ट करने पर हमें यहाँ पे उस टेबल का डेटा शो होगा। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टेबल व्यू। तो यहाँ पर आप अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा डेटा कनेक्टेड है ऑलरेडी। जैसे सेगमेंट है, तो यहाँ पे सेगमेंट में हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, गवर्नमेंट यूनिट है, एंटरप्राइज यूनिट है, बिजनेस यूनिट है या मार्केट यूनिट है। तो ये मैंने जो आपको शॉर्ट दिखाया, ये यहाँ पे हमारा ये होता है ड्रॉप डाउन का ऑप्शन। इस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन से हम यहाँ पे अपनी फील्ड्स चेक कर सकते हैं कि इस फील्ड में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। सो इफ यू स्क्रॉल ओवर राइट, यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स मिल जाएंगे कि आपके कौन कौन से कॉलम्स हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अब हमारे पास कितने ईयर्स का डेटा है। तो इस सैम्पल डेटा में 2013 एंड 14 2 ईयर्स का डेटा हमारे पास है। सो दिस इज हाउ वी रीड आर डेटा और एनालाइज आर डेटा। अभी नीचे हमारा अगर हम बॉटम पे देखें तो हमारा यहाँ पे आता है टेबल, टेबल का नाम और उसमें कितने रोज हैं, कॉलम जो कि हमने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, और उस कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो इफ वी सी यहाँ पे हमारे पास 2 साल का डेटा, 2 ईयर्स का डेटा 2013 एंड 14, दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हमें वही डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे भी आपके पास कुछ डेटा टैब होता है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर किन कैटेगरी के ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास मॉडल व्यू। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं तो आपके पास आपको उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करना होता है। जस्ट लाइक एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, हमारी एसक्यूएल टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप सेट करते हैं या फिर मॉडलिंग सेट करते हैं, दैट इज जॉइंट्स लगाते हैं। इन पावर बीआई टर्म्स वी कॉल दोस जॉइंट्स एज रिलेशनशिप सेटअप करना या फिर डेटा मॉडलिंग करना। उसमें भी हमारे पास मल्टीपल तरीके के मॉडलिंग होती है, जैसे कि वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वी डू हैव। अभी यहाँ पे फोर्थ व्यू जो है हमारा, वो है डेक्स क्वेरी व्यूज। उससे पहले हम एक चीज और चेक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पेन है,
इस प्रॉपर्टीज पेन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, एंड देन डेटा पेन है। डेटा पेन में हमारे पास वो सारे टेबल्स यहाँ पे शो होंगे जो हमने टेबल्स इंपोर्ट किए हैं, एंड मॉडल शो होगा। मॉडल में हमारे पास जो भी हमारे पास मॉडल है उसमें कौन से टेबल्स हैं, कौन सी रिलेशनशिप्स है, कौन से मेजर कैलकुलेशंस हमने किए हैं, मेजर मीन्स कैलकुलेशंस, और हमारे कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं, कैलकुलेशन ग्रुप्स। सो अभी हमने कुछ भी ग्रुपिंग करना या रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं स्टार्ट किया, तो दैट इज वाई दिस इज शोइंग एज 0। अभी हमारे पास टेबल भी एक ही है, तो दैट इज वाई इट इज शोइंग एज 1, दैट इज फाइनेंशियल टेबल। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट क्वेरी व्यू। इस टेक्स्ट क्वेरी व्यू में आप अपना सारा कुछ कैलकुलेशंस रन करके देख सकते हो, एंड उनका क्या रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो। सो दैट आपका दिस इज जस्ट टू एनालाइज कि आपका डेटा जो आ रहा है, आपका जो आउटपुट आ रहा है, दैट इज कमिंग करेक्ट और नॉट, right? So this is all about the overview of Power BI desktop. So in the next tutorial we will see how to connect data with Power BI. So यहाँ पर हमने केवल सैम्पल डेटा इंपोर्ट किया जो कि लर्निंग पर्पस के लिए होता है। इफ यू हैव सम डिफरेंट डेटा टू कनेक्ट, वो चीज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे।